Hello everyone. Today I am here to teach you nouns. Yes, my dear students, if you want to learn English language, you first need to have a proper understanding of its grammar. And for that, you need to learn its very first topic, the basic, that is the nouns. But dear students, what do you mean by grammar? Please note that grammar is nothing but a set of rules that you need to follow in order to speak a language fluently and correctly. Yes, my dear students, it is impossible to learn a language and have better control of it without understanding its grammar. And to learn English language, you need to start with the basics of English grammar, that is the nouns. So without further ado, let's begin. Dear students, everything in this world has a name. And these names are nothing but in grammar, these names are nouns. Yes, my dear students, look around yourself. The chair on which you are sitting, the fan in your room, the pen with which you are writing, the notebook on which you are writing, the air you are breathing, your mother who cooks food for you, your pet animal, you yourself, the city in which you live, the village in which you live, all are examples of noun. Yes, my dear students, the word that is used to refer anything is simply a noun. Dear students, you can define noun as a word that represents the name of a place, person, animal, things, or ideas. Clear? Name of a person, place, animal, things और ideas. इन सभी चीजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा कहते हैं. होप आपको ये चीज क्लियर है. Let's understand this with the help of examples. For example, let's take the name of person. A man, Riya, Rakesh, Manoj, Sheila, the president, the Shah Rukh Khan. All these are examples of a noun. Noun which is referring to the name of a person. Let's take example of name of a place. For example, the bedroom, a kitchen, a village, a city, India, New Delhi, country, river. All these are examples of noun that refer to the name of a place. Now let's take examples of name of animals, like your pet animal, like your dog, your cat, wild animals like lion, tiger, elephant, birds like peacock, pigeon, and any other bird for that matter are examples of name of animal or birds, right? Now, for example, let's take chair, table, pillow, bed, ceiling fan, paper, pen, pencil. All these are examples of a thing, right? And it is also a noun. Clear? Now let's understand every idea represents an abstract noun. For example, happiness, anger, love, hate, sadness, greed. All these are abstract nouns. It represents an idea, right? Hope you are clear with the definition of noun and its example. Noun क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को हम जिन शब्दों से प्रदर्शित करते हैं उन्हीं शब्दों को इंग्लिश में नाउन और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा. Now let's move to the roles of a noun in a sentence. Yes, dear students, based on its positioning, a noun serves
various roles in a sentence and we will understand them one by one. So, the very first role of a noun in a sentence is role of a subject. Yes, my dear students, the most common use of a noun in a sentence is that of a subject. किसी भी सेंटेंस में नाउन का सबसे कॉमन यूज क्या है? सब्जेक्ट की तरह काम करना. बट ये सब्जेक्ट होता क्या है? Dear students, subject is nothing but the one who is doing the action, the doer of the action, or the one about whom the whole sentence is talking. जिसके बारे में उस पूरे सेंटेंस में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर वो जो किसी क्रिया को कर रहा है. द डूअर ऑफ द वर्ब, द डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट. Let's understand this with example. For example, Shania is dancing. What is the verb here? Dancing. The action which is being done is dancing, and who is doing the action? Shania is doing the action, and Shania is the name of a person. So it is a noun, right? So here the noun is acting as a subject. Let's take another example. The team is playing its best football game ever. The team. Who is playing? The team. The whole team is playing, and the team here represents a noun as well as a subject. Another example. New Delhi is crowded. किसके बारे में बात हो रही है? न्यू दिल्ली. एंड न्यू दिल्ली ही वो शहर है जो बहुत ही क्राउडेड है, मतलब बहुत ही भीड़ से भरा हुआ है, राइट? सो न्यू दिल्ली हियर इज अ नाउन, नेम ऑफ अ सिटी, एंड is acting as a subject. Hope you understood the function of a noun as a subject. ठीक है? सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा शब्द जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, द डूअर ऑफ द एक्शन, या फिर जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात हो रही है. तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उन सब में जो सब्जेक्ट्स थे वो कौन थे? जो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, शनाया इज द वन हु इज dancing. So Shania is the doer, as well as it is the name of a person. So it's a noun. Here, noun is acting as a subject. Second one, the team is playing its best football game. Playing, who is playing? The team. So the team becomes the subject. It is also a kind of a noun, collective noun it is actually. Third one, what is the third example? New Delhi is crowded. New Delhi is the name of a city, and what is its state? State of being kya hai? Ki it is crowded. Hope you have clear. Let's move to the role of a noun as an object of the action. Object of the action? Yes, object is the recipient of the verb. जो डूअर ऑफ द वर्ब है वो सब्जेक्ट हो गया, बट जिसपे वर्ब परफॉर्म हो रहा है, जिसपे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. और ये ऑब्जेक्ट का रोल भी किसी सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन ही परफॉर्म करते हैं. Basically, object of a sentence answers the question what or whom in a sentence. जैसे Shania is writing a letter. What is Shania writing? Letter. So letter here is an object, right? जैसे मैंने कहा Rohit is talking to his friend. Whom is Rohit talking to? Whom is Rohit talking to? So Rohit is talking to his friend. So friend here is an object. So जो what
या whom का आंसर होगा, मतलब किस पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, किससे बात की जा रही है, टॉकिंग किससे हो रहा है, या फिर लेटर या फिर क्या लिखा जा रहा है, व्हाट या whom का जो आंसर है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो किसी सेंटेंस में नाउन का पहला फंक्शन है या फिर मोस्ट कॉमन फंक्शन है एज अ सब्जेक्ट और दूसरा फंक्शन क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट। होप यू आर क्लियर। बट ये जो रोल ऑफ ऑब्जेक्ट है ना किसी सेंटेंस में, ये भी दो तरह के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको भी मैं आपको भी बता देती हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट who is the direct recipient of the verb, जिस पे वो वर्ब डायरेक्टली परफॉर्म हो रहा है उसे ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, सैम हैज कुक्ड डिनर, ठीक है, सैम हैज कुक्ड डिनर। तो सैम इज द सब्जेक्ट और कुक्ड क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब मतलब व्हाट हैज सैम डन, सैम हैज कुक्ड डिनर। तो डिनर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बट अगर मैं कहूँ सैम हैज कुक्ड डिनर फॉर हिज फैमिली, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डिनर है, व्हाट हैज सैम डन डायरेक्टली इज कुकिंग डिनर, बट किसके लिए, तो फैमिली के लिए। तो यहाँ पे जो फैमिली है वो क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो रेसिपिएंट ऑफ एक्शन डायरेक्टली है, मतलब कि कुकिंग का डायरेक्ट रेसिपिएंट कौन है, डिनर है, कि क्या कुक किया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग cooked, dinner is being cooked. Hope you are clear with what direct object and indirect object means. एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रिया इज पेंटिंग अ सीनरी, तो व्हाट इज द एक्शन, पेंटिंग, व्हाट इज रिया पेंटिंग, व्हाट का आंसर क्या, व्हाट इज रिया पेंटिंग, व्हाट का आंसर क्या है, सीनरी। बट अगर मैंने कहा रिया इज पेंटिंग सीनरी फॉर हर प्रोजेक्ट, तो अब क्या है, सीनरी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट फॉर her project is clear. So dear students, another function of a noun in a sentence is of a noun predicate. Yes, my dear students, when a noun is used after a linking verb and gives you extra information about the main subject of the sentence, it acts as a noun predicate. Basically, जब किसी लिंकिंग वर्ब के बाद हम एक नाउन का यूज करते हैं और ये जो नया नाउन है ये क्या कर रहा है, ये हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट जो हमने लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन लगाया है उसे हम क्या कहेंगे, नाउन प्रेडिकेट कहेंगे। नाउन प्रेडिकेट को हम प्रेडिकेट नॉमिनेटिव भी कहते हैं या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो हमेशा लिंकिंग वर्ब बी या फिर सीन का ही यूज करेगा और उसके बाद ही लगेगा एंड विल रिलेट बैक टू द मेन सब्जेक्ट by redefining it using a new noun phrase। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब कुछ और नहीं है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद लगकर सेंटेंस को सब्जेक्ट को सेंटेंस के बाकी पार्ट से जोड़ता है, लिंक करता है, इसीलिए उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है हमारे मेन वर्ब के। मतलब मेन वर्ब क्या है, रीड, राइट, जंप एक्सेट्रा। ठीक, होप यू आर क्लियर। ठीक,
Now, let's understand this with examples. For example, Alex is a doctor. यहाँ जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या है? एलेक्स है, और उसके बाद जो हमने लिंकिंग वर्ब लगाया है वो क्या है? इज है, राइट? तो एलेक्स इज, यानी कि एलेक्स जो सब्जेक्ट है, इसको सेंटेंस के बाकी पार्ट से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इज कर रहा है। उसके बाद हमने लगाया अ डॉक्टर. Doctor is also a noun, but here this noun is giving you extra information about the main subject. इसीलिए इस noun को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहेंगे, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस पूरे कर रहे हैं. कौन कौन से कंडीशंस? लिंकिंग वर्ब के बाद तुरंत फॉलो हो रहे हैं, और दूसरा कि जो मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. ठीक है? होप यू आर क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल. वेदा इज अ ग्रेट एथलीट. अब यहाँ पे वेदा क्या है? मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है. ठीक है? जिसके बारे में बात होती है, अबाउट विच वी टॉक इन अ सेंटेंस, दैट वर्ड इज नोन एज सब्जेक्ट, राइट? जो मेन सब्जेक्ट है वेदा, वो क्या है? एक ग्रेट एथलीट है. ये इंफॉर्मेशन, एथलीट, ध्यान देना, एथलीट भी क्या है? एक नाउन है, और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? वेदा के बारे में. और दोनों इंफॉर्मेशन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारा लिंकिंग वर्ब इज, राइट? तो सारे कंडीशंस फुलफिल्ड हैं. लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद फॉलो हो रहा है अ ग्रेट एथलीट, और अ ग्रेट एथलीट इसीलिए क्या हो गया? हमारा नाउन प्रेडिकेट हो गया. होप यू आर क्लियर. Now let's move to another use of noun in a sentence. Noun as an appositive noun. Dear students, appositive noun का भी काम हमारे मेन नाउन को यानी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना ही है. जैसा कि हमने नाउन प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि वो भी हम रीडिफाइन करता है मेन सब्जेक्ट को, किसी नाउन को. और यहाँ भी हम दूसरे नाउन का ही यूज कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे नाउन का यूज करके मेन सब्जेक्ट को रीडिफाइन करने का काम यहाँ भी हो रहा है, और नाउन प्रेडिकेट में भी हो रहा था. ठीक है? पर दोनों में डिफरेंस ये है माय डियर स्टूडेंट, कि नाउन प्रेडिकेट में हमने जो सब्जेक्ट है उसके बाद एक लिंकिंग वर्ब होता है, फिर लगाते हैं नाउन प्रेडिकेट को. ठीक है? मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद फॉलो होता है नाउन प्रेडिकेट. बट एपोजिटिव नाउन किसी मेन सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लग जाता है, और इंफॉर्मेशन भी देता है मेन सब्जेक्ट के बारे में. ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. श्रेया घोषाल, द सिंगर, इज फेमस वर्ल्ड वाइड. Shreya Ghoshal, the singer, is famous worldwide. अब यहाँ पे श्रेया घोषाल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंगर, और हमने उसके बाद एक और चीज लगाया, सिंगर. सिंगर भी क्या है? नाउन है. दोनों के बीच में कोई भी अलग वर्ड यूज नहीं हुआ है. तो श्रेया घोषाल को और ज्यादा रीडिफाइन कौन कर रहा है? ये जो अनदर नाउन है, द सिंगर. इसीलिए यही क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव नाउन हो गया, यानी मेन नाउन के सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लगकर सब्जेक्ट को रीडिफाइन करेगा, और ये नाउन ही होता है. मेन सब्जेक्ट और अपोजिटिव नाउन के बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा. ठीक है? तुरंत बाद, जस्ट बिसाइड मेन सब्जेक्ट, जब हम अनदर नाउन को लगा करके मेन सब्जेक्ट को रीडिफाइन करते हैं या मेन सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, तब वहां पर ये नाउन क्या एक्ट करेगा? एज एन एपोजिटिव नाउन. ठीक है? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. माई ब्रदर, अ डॉक्टर,
is coming to meet me. My brother, a doctor, is coming to meet me. My brother is a noun and he is a doctor. ये इंफॉर्मेशन भी दे दिया हमने उसके जस्ट बगल में अ डॉक्टर लिख के, ठीक है। तो अ डॉक्टर क्या हो गया, अपोजिटिव नाउन हो गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, was respected all over the world. यहाँ पे क्या था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेन सब्जेक्ट। द मिसाइल मैन क्या है, एक नाउन है जो डिस्क्राइब कर रहा है एपीजे अब्दुल कलाम को, और इंडिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, होप यू आर क्लियर विद अपोजिटिव नाउन। Now let's move to next use of noun in a sentence. Yes, students, next role of a noun in a sentence is that of an adjective. Yes, my dear students, noun can also act as an adjective in a sentence. When a noun is placed before the main subject or before the main noun and describes a noun, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। समझते हैं, जैसे मैंने कहा अ रेस कार, जो कार है वो कैसा कार है, रेस में यूज होने वाला कार है। अ हिस्ट्री बुक, जो बुक है वो किस चीज की है, हिस्ट्री की है। यहाँ पे हिस्ट्री, रेस नाउन ही है, लेकिन ये किसी नाउन के आगे लग के हमारे बाद वाले नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही माय डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, सो noun as adjectives are always the noun that comes before the main noun and describes it. Hope you are clear. कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ ग्रोसरी शॉप, एक शॉप को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड ग्रोसरी का यूज हुआ है। ठीक है, अ कॉमिक बुक, ये जो बुक है इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है वर्ड कॉमिक से। अ बास्केटबॉल कोच, कोच कौन सा है, इसको डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, बास्केटबॉल से। होप यू आर क्लियर विद द रोल ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो नाउन एक सेंटेंस में बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, noun as a predicate, noun as an adjective, noun as an appositive. ठीक